Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Okay, so we meet once again specifically for the subject of management accounting. Now, the last lecture was an introductory lecture कि management accounting होता क्या है, because it is a part of accountancy universe. So in accountancy you normally start with financial accounting and then you branch out. Okay, उसके बाद में आपको cost accounting मिलता है और आपको कहाँ ना कहाँ पे management accounting मिलता है. I last time explained to you and did my best to tell you the differentiation between FA and MA. Now comes your second chapter. नाम है Analysis and Interpretation of Financial Statements. तो आज सिर्फ इनका मतलब समझ लेते हैं. Actual analysis, actual interpretation next time से करना है. Today from the theoretical perspective कि what do you mean by analysis, what do you mean by interpretation. देखो, if you are unwell, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, बट अगर आप बीमार पड़ो, बुखार आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है, सो यू ऑब्वियसली गो टू अ डॉक्टर. डॉक्टर क्या बोलता है, यार ब्लड टेस्ट तो कराना पड़ेगा क्योंकि इट्स नॉट अ गुड साइन. तो यू गो टू गिव अ ब्लड सैंपल टू अ लैब. वो सैंपल लेते हैं और फिर वो आपके उस ब्लड पे, आई रिपीट माई सेल्फ, हाँ, नाउ फॉर अस इट्स जस्ट अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, इट्स लाइक सर हाँ लाल कलर का था, ओके, और कुछ खास नहीं. बट माय डियर, जब उसका एनालिसिस किया जाएगा, दैट ड्रॉप ऑफ ब्लड, माइक्रोस्कोप के अंदर, सर्टेन इक्विपमेंट्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, मैकेनिज्म्स के अंदर, जब उसका स्टडी एनालिसिस किया जाएगा, उससे जो रामायण पैदा होगी, ओके, द डिटेल्स, यू मे वंडर सर जस्ट फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ ब्लड सो मैनी डिटेल्स. येस माय डियर, बिकॉज योर ब्लड हैज़ अ लॉट एंड लॉट ऑफ कंटेंट्स इन इट. जब तक उसको एनालाइज नहीं किया जाएगा, ओके, एंड देन एक एनालाइज किया, उसके बाद में वो रिपोर्ट इंटरप्रेट भी करता है एंड एक ओपिनियन देता है, दिस इज़ हाई, दिस इज़ लो, दिस इज़ गुड. इसके बारे में थोड़ी आपको ज़्यादा चिंता करनी पड़ेगी. सो टुडे वो लेबोरेटरी का जो काम हमको हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ करना है कि हाउ डू वी एनालाइज our फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हाउ डू वी इंटरप्रेट our फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो पहला सवाल जो आपका आना चाहिए, सर पहले ये बता दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, उसके बाद में आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डज एनालिसिस मीन एंड इंटरप्रिटेशन. तो मैं क्या कहूँगा, गुड क्वेश्चन, कि यस पहले तो ये समझ ले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होता क्या है. सो सम थिंग्स दैट यू हैव बीन डूइंग फॉर मेनी ईयर्स. बैलेंस शीट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट.
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या उसको इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। ओके, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट करके होता है जो आपने नहीं किया होगा इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इन फ्यूचर भविष्य में आपको सिखाया जाएगा। इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कैश आया, कैश गया, किधर से आया, किधर गया, क्यों गया, वो सब कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बताएगा। दिस एंड सम explanations, some calculations, they form a part of financial statements. Okay, so that is what it means when we say financial statements. Financial statements में आता क्या नहीं है, अगर मैनेजिंग डायरेक्टर या कोई भी डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या चेयरमैन कोई भी अपना खुद का ओपिनियन बना के एक लेटर लिखते हैं, उसको इन द लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड नहीं किया जाता. It's not done. Why are financial statements so important to understand? Because whenever the AGM, a few days back I was watching the AGM of Jio. Okay, तो उसके पहले every shareholder of Jio is sent a reminder, a notice that on this day at this particular timing 2 o'clock in the afternoon online AGM start होगा. But shouldn't the शेयर होल्डर नो कि क्या डिस्कस होने वाला है? हाँ, तो उनको एजेंडा आइटम्स और उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भेजे जाते हैं कि जियो ने पिछले 1 साल में क्या किया है, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नथिंग न्यू, आपने ये पहले किया है. हाँ, आपने किया है इसको टी स्टाइल में. टी मतलब हॉरिजॉन्टल स्टाइल में, हॉरिजॉन्टल. आई टेल यू लेटर ऑन हमको क्या करना है, क्योंकि एनालिसिस हॉरिजॉन्टल स्टाइल में नहीं होता. आई टेल यू, डोंट वरी अबाउट इट. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव्स? कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं ये क्यों बनाए जाते हैं? तो सर मैडम ऐसा है कि इफ़ यू वांट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंस? पैसा. देन व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल पोजीशन? कितना पैसा है, कितना पैसा है. ओके, तो हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा. यस, तो ये तो पता चलेगा कितना पैसा है आपके पास में. ओके, गुड. देन टू नो द परफॉर्मेंस. वेल, एवरीबडी वांट्स टू नो द परफॉर्मेंस. जब आप आजकल कोई मॉडर्न व्हीकल चलाओ, आप कोई मॉडर्न बाइक चलाओ, मॉडर्न कार चलाओ, एट द एंड ऑफ द जर्नी इट विल टेल यू द नंबर ऑफ आवर्स इट टुक एंड वेरी इंपॉर्टेंट द माइलेज. अगर वो एक पेट्रोल फ्यूल ड्रिवन कार है, सो इट विल गिव यू द माइलेज. अगर वो बैटरी ऑपरेटेड कार है, स्टिल इट विल टेल यू कि देखो भाई इतना चार्ज में आप इतना. सो व्हाट इज दैट? परफॉर्मेंस. तो परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी कैन ओनली बी नोन, गुड परफॉर्मेंस, बैड परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी, लॉस, when you do financial statement, when you prepare financial statements. To know the cash flow, very important. That is the reason cash flow statement बनाया जाता है, because eventually what is very important? Money. There are so many दुकान and दुकानदार even today when you have Google Pay, Phone Pay, पर जब उनके पास जाते हो तो वो बोलते देखो सर वो हमको नहीं पता, हमको पैसे दो, हमारा बिजनेस अभी तक किस पे चलता है? पैसे पे. तो उसी तरह कंपनी में भी काफ़ी हद तक चीज़ें पैसे पे चलती है. पैसा किधर से आया, पैसा किधर गया, क्यों गया, कब गया, कितनी मात्रा में गया, व्हाट क्वांटिटी, ओके, हु वाज इट पेड टू. सो कैश फ्लो स्टेटमेंट विच इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी आपको एक्सप्लेन करके देगा. एंड पॉइंट नंबर डी, टू नो स्टूवर्डशिप एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ. इसका मतलब अगर आपको समझना है, वेरी सिंपल, प्लीज अंडरस्टैंड. अ स्टूवर्ड इज नथिंग बट समथिंग लाइक अ वेटर, जो आपको सर्व करता है. जब आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, ओके, तो कंपनी में कौन किसको सर्व कर रहा है? मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सर्व कर रहे हैं ओनर्स को, शेयर होल्डर्स को. शेयर होल्डर्स ने पैसा कंपनी में डाला, मैनेजमेंट मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करता है कि वो पैसे का यूज, हाउ विल द यूटिलाइजेशन ऑफ दैट मनी बी. सो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव टू यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू एक्सप्लेन to the owners कि this is how your money was used. So my dear, very simple objectives. These are not very long answers, so I'm not getting too much into details. That is no right now requirement for that. Uses of financial statement. Users. कौन financial statement use करता है? Well, owners use करते हैं, managers use करते हैं,
इन्वेस्टर्स यूज करते हैं, क्रेडिटर्स एंड लेंडर्स यूज करते हैं, गवर्नमेंट यूज करता है. ओके, वेरी क्विकली, ओनर क्यों यूज करता है? बिकॉज शेयर होल्डर को इफ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर says to the shareholders, see, this is the project that we started, this much is the money that we put into it and इतना कमाई हो गया. कैन दी ओनर्स, वो कोई उनके सगे में आता नहीं है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ओके, कैन ट्रस्ट कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं? इट्स डिफिकल्ट एंड दे शुड नॉट. कोई या कंपनी में कोई खून का रिश्ता नहीं है, तो फिर ओनर्स क्या करेंगे? हाउ विल दे कम टू द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, कि जो पैसा उन्होंने कंपनी में डाला है, इज इट सेफ, इज इट बीइंग यूज्ड करेक्टली? वेरी सिंपली, लुक एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लुक एट द बैलेंस शीट, लुक एट द इनकम स्टेटमेंट, लुक एट द ट्रेडिंग अकाउंट, लुक एट द कैश फ्लो स्टेटमेंट, पूरा इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे. ओके, मैनेजर्स यूज करते हैं क्योंकि मैनेजर्स को डिसीजंस लेना है. ओके, कौन सा प्रोडक्ट को हमको पुश करना है, कौन सा प्रोडक्ट को हमको बंद करना है, कौन से प्रोजेक्ट को हमको पुश करना है, कौन से प्रोजेक्ट को हमको बंद करना है, कौन से फैक्ट्री को हमको स्टार्ट करना है. Management has to take decisions. Investors, if you have heard about Zomato, if you have heard about Byju's, if you have heard about Unacademy, these are big platforms. Okay, Ola, Swiggy, okay, big platforms. इनमें पैसा इन्वेस्टर्स डालते हैं. इन्वेस्टर्स क्या किसी भी अपकमिंग ऐप में, ओके, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे, iOS प्लेटफॉर्म पे पैसा डालेंगे? नो, उनको पैसा उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है. दे विल स्टडी द परफॉर्मेंस ऑफ दैट कंपनी. हाउ विल दे स्टडी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. दे विल नॉट कॉल द एमडी ऑफ द कंपनी के सर हाउ इज योर कंपनी डूइंग, वी हर्ड यू रिक्वायर मनी, we'll give you the money. No, we'll give you the money, but we will not take your word for it. We will study your financial statements. It's all a calculation. सभी लोग कैलकुलेट करते हैं, तो लेंडर्स भी कैलकुलेट करते हैं, इन्वेस्टर्स भी कैलकुलेट करते हैं, बैंक्स लोन देते हैं, तो वो भी ऐसे ही अंधाधुंध थोड़ी लोन देने वाले हैं. दे विल डू देयर कैलकुलेशंस. They will find out, is this company who's going to take a loan from us able to pay us back interest every month? ढूंढना पड़ेगा, उनको कैलकुलेशन करना पड़ेगा. गवर्नमेंट क्यों यूज़ करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट आता है और प्रॉफिट के ऊपर गवर्नमेंट को अपना टैक्स चाहिए, कॉर्पोरेट टैक्स चाहिए. तो गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली नज़र गड़ाए रखती है, इन लोग कब रिलीज़ करते, हम देखेंगे इनका कितना प्रॉफिट आएगा और क्या हमको हमारे हिस्से का टैक्स मिला है कि नहीं. कम मिला है तो हम नोटिस भेजेंगे. सो माय डियर, व्हाट यू सी ऑन द स्क्रीन इज़ अ फ्यू objectives of financial statement and a few users of financial statements. Right now what am I doing is I am showing you कि ये financial statement दिखता कैसे. well actually काफ़ी भयानक दिखता है. okay, so firstly they are public documents. उसको कोई ताले चाबी में तुम्बाड़ वाले गुफा में बंद नहीं किया जाता. प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कि financial statements are in fact today readily available on the website of any company. मुझको कोई बड़ा टाइम नहीं लगा है ये वाले जियो का एक इनकम स्टेटमेंट लाने के लिए. बट इफ़ यू डू लुक एट इट, जस्ट लुक एट इट, और कुछ करो मत, समझने की कोशिश मत करो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू अंडरस्टैंड. बट राइट नाउ तो वी हैव जस्ट स्टार्टेड. हाँ, सो यू विल सी अ लॉट ऑफ नंबर्स कि येस आई कैन सी इनकम, आई कैन सी वैल्यू ऑफ सर्विसेज, बट देर आर सो मेनी decimal numbers. So how do I understand all of this? Financial statements obviously is made on facts and figures, so there are going to be a lot of numbers. But for a common man who may not be a lot educated or who may be educated but not educated in this department, तो वो बोलेगा मेरे को बस 245 decimal point 6 मेरे को तो ये दिख रहा है, बाकी समझ में मुझको कुछ नहीं आ रहा है. Another example, behind is the balance sheet, part of the balance sheet, not even full, part of the balance sheet of Tata Motors. Okay, now it looks a lot compressed, but then again so many items. In fact you will complain in the comment box, sir दिखता ही नहीं. It's okay, मेरे को दिखता नहीं है. Okay, it has to be expanded. But what am I trying to say, this is part of the balance sheet. So you can imagine balance sheet actually होता कितना बड़ा है, and there is such a lot of information in the financial statements. But just having information is of no use. अगर गूगल के पास
जिसके पास कहा जाता है कि नाउडेज यू डोंट यूज द वर्ड सर्च, गूगल इट, तो मतलब गूगल के पास उसका इंफॉर्मेशन रहेगा, बट इफ गूगल उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज नहीं करेगा, यू सी गूगल में अगर आप कभी कोई इंफॉर्मेशन ढूंढो तो ना आपको टैब्स मिलते हैं, ऑल, फिर इमेजेस, वीडियोस, न्यूज, you get, okay, that means if somebody would be, see, I want information of this hero, heroine, sports personality, but मुझे नहीं जानना वो कहाँ पे पैदा हुए थे, उनका नाम, वो सब नहीं, मुझको फोटो चाहिए, तो आप इमेजेस पे चले जाओ, गूगल हैज़ द इंफॉर्मेशन, बट उसने उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया है, इंटरप्रेट करके क्लासीफाई किया है, तो सर मैडम वी हैव टू डू द सेम, ओके, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंफॉर्मेशन होगा, वो रॉ इंफॉर्मेशन होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, वो रॉ इंफॉर्मेशन होगा, रॉ इंफॉर्मेशन लाइक दिस फॉर अ कॉमन मैन इज ऑफ नो फायदा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा. सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को ये द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन दैट financial accounting has already prepared the income statement, has already prepared the balance sheet. आप इसको एनालाइज करो, आप इसको थोड़ा इजीली डाइजेस्ट हो जाए, एक आदमी को समझ में आ जाए, आप ऐसे प्रेजेंटेशन दो. सो लेट मी वेरी क्विकली फर्स्ट टेल यू व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस. सी व्हाट यू सीन बिफोर इज समथिंग विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. उसको तोड़कर सिंपल वर्ड्स में, सिंपल कैलकुलेशंस करके प्रेजेंट करना नॉर्मल जनता तक, आम आदमी तक, इज नथिंग बट एनालिसिस. सो आई रिपीट माई सेल्फ, एफए पीपल, एफए डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दे डोंट डू एनालिसिस. वो उनका काम नहीं है. उनका काम है डेबिट, क्रेडिट, जर्नल एंट्री, बैलेंस शीट, टैली, खत्म. दे विल गिव इट टू यू. नो बोलेंगे सर छुट्टी, हम जाते हैं. देन स्टार्ट्स, आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, एफ ए की गाड़ी खत्म, एम ए की गाड़ी स्टार्ट. देन कम्स द जॉब ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स. व्हाट आर दे गोइंग टू डू? दे विल एनालाइज. ओके, दे विल से वी ऑलरेडी हैव द नंबर्स, अमाउंट्स है हमारे पास, अभी हमको ये एनालाइज करना है. ओके, एनालाइज दो तरीके के होते हैं. फर्स्ट डिपेंड्स हु डज द एनालिसिस, सेकेंड डिपेंड्स हाउ इट इज डन. सो व्हेन यू से हु डज इट, वेल इंटरनल एनालिसिस होता है, एक्सटर्नल एनालिसिस होता है. ओके, सो इंटरनल में पब्लिक अलग होती है, वेल इंटरनल में एक्चुअली पब्लिक नहीं होती है, मैनेजमेंट होता है, ओनर्स होते हैं. एक्सटर्नल में लेंडर्स होता है, इन्वेस्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट होता है. ओके, एंड सेकेंडली तो डिपेंड करता है कि एनालिसिस हु इज डूइंग इट, इंटरनल और एक्सटर्नल. एंड सेकेंडली हाउ इज इट डन? वेल यू कैन आइदर डू कन्वर्जन और यू कैन डू कंपेरिजन. हाउ इज इट डन, कन्वर्जन और कंपेरिजन? प्लीज नोट, वी आर गोइंग टू डू ऑल, we are going to do conversion and we are going to do comparison, all of this, because that is our job in this particular chapter, analysis and interpretation. Now interpretation का मतलब क्या होता है? See, analyze तो कर लिया, अभी थोड़ा आपने बराबर से सजा दिया, ओके, बट जो numbers है अभी तक numbers ही है. पहले ऐसे थे, इसको आप कहते हो horizontal, अभी उसको आपने कर दिया vertical. ओके, but then still the number is the same. ये नंबर मैं कैसे समझूँ, उसके लिए you have to do interpretation. Interpretation is a job that is done after analysis. I repeat myself. So the eventual easy answer of difficult numbers is always, just a minute, if I can change. Okay, that was not the plan actually. So this was basically the plan. I just move out from the screen and you get the entire explanation of the entire reading material of interpretation. And if you do read it, it says below, to bring out the meaning in simple terms, not complex terms, simple terms, for the benefit of a person. The person can be anybody in India, okay, because we are talking about public companies. Interpretation brings the significance hidden within the data. कि amount है, बट वो कितना इंपॉर्टेंट है वो कैसे समझे, इट ब्रिंग्स दैट इंफॉर्मेशन आउटसाइड. इंटरप्रिटेशन मीन्स कमिंग टू अ कंक्लूजन, गुड बैड, एंड फॉर्मिंग एन ओपिनियन. अगेन ना, अच्छा है, बुरा है,
आपकी सरकार कैसे चली, आपकी सरकार ने पिछले 5 सालों में क्या काम किया था, ओके, ये टीवी चैनल कैसी चल रही है, उसकी रेटिंग कैसे है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दैट इज गोइंग टू बी इंटरप्रिटेशन विच वी विल बी स्टार्टिंग the next time we meet. Right now I'm just giving you little bit of samples. Samples of what? Well, let me show you, तो आपको समझ में आ जाएगा. What you see behind me is a vertical balance sheet. You have learnt a balance sheet. Everybody has learnt a balance sheet. Okay, what have you learnt in the balance sheet? Well, many of you would tell me, sir, asset सीखा है, liability सीखा है, कैपिटल सीखा है, लोन सीखा है, डेटर, क्रेडिटर, लैंड, बिल्डिंग, कैश, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल. तो वर्टिकल बैलेंस शीट डिफरेंट कैसे है? वो बैलेंस शीट आपने सीखा हॉरिजॉन्टल. अब आप इसको करोगे वर्टिकल, दैट इज एनालिसिस. बिकॉज इफ यू डू पे अटेंशन, अगर आप ये पीछे मुझे देखो, आपको नजर आएगा ओनर्स फंड्स, मालिक का पैसा कहाँ कहाँ होता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस. सो देर इज अ कैटेगरी, योर मम्मा, everybody's mama, okay, who handles the kitchen. I'm not saying mama's job is only the kitchen, I'm just saying many moms do that, okay. Somebody is handling the kitchen. वो क्या करते हैं? वो एनालाइज करते हैं. कहाँ पे एनालाइज करते हैं? मसालों में. तो छोटे छोटे जार होते हैं, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी, पेपर पाउडर, रेड चिल्ली, कश्मीरी चिल्ली, बेड़की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके. तो वो क्या है? वो मसाले तो ला लिए, अलग अलग रखते हैं तो कि ईजी हो अंडरस्टैंडिंग में. सिमिलरली इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हेन वी मीट, आई विल इंट्रोड्यूस टू यू हाउ डू यू एनालाइज अ बैलेंस शीट. सेम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज which you have learnt left right, how do you make it up down, plus and minus? You will have all your assets, all your liabilities. The only thing is the look will change. So this is a part of analysis. इसके आगे अगर आप जाते हो तो फिर इंटरप्रिटेशन होता है. ओके, होल्ड ऑन. तो व्हाट इज बिहाइंड मी इज पहले था बैलेंस शीट, नाउ इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आई रिपीट माई सेल्फ, यू मे से बट सर हाउ इज इट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? सो प्लीज नोटिस, ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, वेजेस, देन कैरेज इनवर्ड, ये आपने कहाँ पे देखा और सुना है? ऑब्वियसली ट्रेडिंग अकाउंट. थोड़ा नीचे आओगे, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, सेलिंग, ये आपने कहाँ पे सुना है? P&L account. So what is there besides me, top to bottom, is nothing but trading profit and loss account. But yes, not left right, it is vertical. तो the very first thing, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सबसे पहली जिम्मेदारी क्या होती है? पहले तो कन्वर्ट करो फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, बिकॉज हॉरिजॉन्टल मीन्स डेबिट क्रेडिट. बट everyone who comes to the AGM, they are not a commerce student, accountancy student. बिल्कुल नहीं. काफ़ी लोग तो अकाउंट्स करते तो भी उनको पसंद में नहीं आते. सो दे डोंट नो डेबिट्स एंड क्रेडिट. तो डेबिट क्रेडिट की भाषा में बात नहीं करनी है. तो किस भाषा में बात करनी है? प्लस माइनस. होता डेबिट क्रेडिट ही है, बट प्लस एंड माइनस. सो वी आर गोइंग टू लर्न, आई एम गोइंग टू टीच, यू आर गोइंग टू लर्न how do you make a old balance sheet into a vertical format, how do you make an old trading profit and loss account into a vertical format, and also a cash flow statement, because that is what I pointed out at the beginning. Okay, what does financial statement means? Balance sheet, income statement, which is trading profit and loss account, and behind me cash flow statement. What does cash flow statement mean? अरे पैसे कहाँ से आए, पैसे कहाँ पे गए? मनी कहाँ से आया? एक्सप्लेनेशन. कहाँ पे गया? एक्सप्लेनेशन. द कैश फ्लो स्टेटमेंट, बिकॉज आई होप यू अंडरस्टैंड, सबसे बड़ा फ्रॉड कैश में होता है. सबसे बड़ा घपला बैंक में होगा, इंश्योरेंस कंपनी में होगा, कोई भी कंपनी में पैसे का होता है, बिकॉज इट इज़ अ लॉट सिंपलर टू रॉब मनी. ओके, डिजिटल मनी इज़ डिफरेंट, बट अदरवाइज जो पैसा होता है उसको चोरी करना बहुत सिंपल है. एटलीस्ट मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ती है.
तो कैश फ्लो स्टेटमेंट वो उस पर नज़र रखता है एंड एक्सप्लेन्स कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। अगर 2 रुपया कम हो गया, 2 रुपये नहीं, बड़े कंपनी में 20-30 लाख रुपया कम हो जाता, क्यों कम हो गया, इट एक्सप्लेन्स दैट। 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके बाद में ये जो 3 है, दैट वाज द पार्ट ऑफ एनालिसिस। देन कम्स द पार्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन में आप क्या करोगे? कैलकुलेशंस। Now there are different kind of interpretations. There is something called as common size. So common size में you notice there is percentage. ये amount है, यहाँ पे percentage है. I will teach you. You will learn. How do you prepare? How do you interpret something? Something मतलब balance sheet, income statement in a common size style. ये एक तरीके का interpretation हो जाएगा. Then there is another. What is the another? It is comparative. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ, कंपेरेटिव। कंपेरेटिव का मतलब कंपेयर करूँगा, ये 2 रुपया, ये 4 रुपये, तो कंपेयर कैसे करें? अरे 2-4 कैसे हो गया? 2 बढ़ गया ना, हाँ, तो इंक्रीज कैसे हुआ, डिक्रीज कैसे हुआ? सो इफ यू नोटिस अबाउट देयर आर कॉलम्स फॉर इंक्रीज, डिक्रीज एंड देयर इज ऑल्सो इन परसेंटेज स्टाइल। तो मल्टीपल टाइम्स यू विल नोटिस कि सर आप हमेशा परसेंटेज में क्यों कन्वर्ट करते हो? बिकॉज माई डियर, रुपीज कैन बी crores and crores of rupees, बट परसेंटेज तो नॉर्मली 100 ही होता है ना, तो सिंपल होता है अंडरस्टैंड करने में। तो दैट्स प्रीटी मच वो कन्वर्शन हम करने वाले हैं, इंटरप्रेट हम करने वाले हैं। ओके, देन वेल व्हाट यू सी बिहाइंड मी इज इनकम स्टेटमेंट। पहले था बैलेंस शीट, ओके, वो भी इंटरप्रेट होगा कॉमन साइज में, कंपेरेटिव में, एंड इवन इनकम स्टेटमेंट, ओके, वो भी होगा। ऑल ऑफ दिस प्रैक्टिकली इज व्हाट we will be doing next time, and this is a cash flow statement. उसके अंदर there are 3 activities. There is operating activity, investing activity, there is financing activity. Idea, I repeat myself, it was a very short and sweet lecture, okay, कि in chapter number 2, which is not a small chapter, it is a very long chapter because there are multiple varieties in this. We have to concentrate on balance sheet, उसका इंटरप्रिटेशन, कॉमन साइज, कंपेरेटिव, ट्रेंड एनालिसिस, मैंने पीछे दिखाया नहीं, बट देयर इज समथिंग एल्स। देन वी हैव टू लुक एट इनकम स्टेटमेंट, उसके अंदर कॉमन साइज, कंपेरेटिव, ट्रेंड एनालिसिस। ओके, सो इट्स नॉट छोटा मुद्दा, काफ़ी बड़ा मुद्दा है। एवरी टाइम व्हाट यू आर गोइंग टू रिक्वायर, क्वाइट सिंपल, अ कैलकुलेटर। मेक श्योर यू हैव अ कैलकुलेटर बिकॉज नंबर्स थोड़े ज़बरदस्त होते हैं और उसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम जाएगा। आई होप 2 चीज़ों का मतलब आपको समझा कि एनालिसिस क्या होता है, इंटरप्रिटेशन क्या होता है। ये दोनों थियोरेटिकल नहीं है, वी हैव टू एक्चुअली डू अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। एज एंड व्हेन आई मीट यू नेक्स्ट टाइम, वो गाड़ी हम लोग स्टार्ट करेंगे। आई होप एवरीथिंग दैट हैज़ बीन थॉट टू यू, एक्सप्लेन टू यू, हैज़ बीन अंडरस्टूड। अगर समझा तो प्लीज़ लाइक जाते जाते कर देना लेक्चर के वीडियो को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, और शेयरिंग ऑफ दिस लेक्चर और एनी लेक्चर ऑन दी प्लेटफॉर्म। वी हैव गॉट आई थिंक approximately 550 plus lectures for different divisions and standards. आप प्लीज़ शेयर कर लिए अपने दोस्तों के साथ में एंड एटलीस्ट उन तक खबर पहुंचा दीजिए चैनल के बारे में, चैनल के कंटेंट के बारे में, एंड हाउ कैन दिस चैनल and the explanation and the teaching on this channel be useful to them. Till the time we meet again, please take care of yourself, take care of your seniors and juniors, take care of your lovely family members. Okay, good day to all of you. God bless.